students, how are you all? Must be doing good. This topic is from Human Capital Formation chapter, and complete data is taken from NCERT book. Alright, so you can rely upon this data. Now, the topic is government expenditure on education in India. So, how much government spend on education in the country? There are two ways of measuring this. जैसे कि there are many ways of understanding national income. There are two ways here. One is as per the income. Second is according to expenditure. I repeat. यहाँ भी दो एंगल की बात करेंगे हम. एक जो इनकम से रिलेटेड होगा, दूसरा जो हम खर्चे की बात करेंगे. कैसे? पहले टॉपिक पे आते हैं, फिर मैं आपको एक अच्छा घर का एग्जांपल दूंगी ताकि आप उसे रिलेट कर सकें. One way we are going to study here is as a percentage of GDP. Now when I say GDP is that is country's income, right? Country की income को हम कैसे measure करते हैं? GDP में. And when I talk about the expenditure, so we say total as a percentage of, ऐसे लिखेंगे हम इसे as a percentage of total government expenditure. Now what do I mean by this? Right? दो चीजें. One, government अपने खर्चों का कितना परसेंटेज एजुकेशन पर करती है. दूसरा, गवर्नमेंट जो अर्न करती है उसका कितना परसेंटेज एजुकेशन पर लगाती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल, बाद में हम डेटा पे भी आ जाएंगे. जैसे मैं अपने घर में मेरी इनकम का से सपोजिंगली माय इनकम इज 50,000 रुपीस और मे बी 1 लाख रुपीस इन मंथ. अब मैं इस 1 लाख में अपने घर में एजुकेशन पर, मेरे बच्चों की एजुकेशन, मेरी अपनी एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ मैं कितना पैसा लगाती हूँ. से फॉर एग्जांपल मैं 1 लाख में से 30,000 रुपीस मेरा ऑलमोस्ट अ मंथ जो है वो मेरे घर की फैमिली की एजुकेशन और उस पर लगता है. और मे बी 40,000, व्हाटएवर परसेंटेज यू वांट टू टेक, यू कैन टेक इट. सो 30% हो गया. सो दैट मींस मेरी इनकम का मैं 30% आई स्पेंड ऑन एजुकेशन. बड़े-बड़े नेशंस अपना कंट्री का, और why it is important to spend on education and good health. Why it is important? Because you're transforming human into human capital. You're making them capable to earn their living better. Okay, so it's important. More the percentage you spend on your personal grooming, the better it is. हमारे देश में कितना था? 1% से कम था. 4% तक बढ़ा during many years. And the target was to reach to 6%, which the government just announced in new education policy. मतलब simple भाषा में हम अपने second point को पहले देखिए handouts में, question number 11. Alright? Second point GDP वाला जल्दी समझ में आएगा. The percentage of education expenditure of GDP expresses, पहले उसको define किया, how much of our income is being committed to the development of education in the country. हम कितना committed हैं, कितना percentage हम अपनी education पर लगाएंगे. The increase, यहाँ पर सिर्फ education की बात चल रही है बेटा, human capital नहीं, health भी नहीं. Sorry, मैंने बीच में health बोला, लेकिन आप उसे misunderstand ना करें. education पर during 1952 to 2014, so ये क्या हो गया, वो almost 70 years है ना, if not 70, 60 साल में 2014 तक ये 0.64 से 4.13 तक बढ़ा. लेस देन 1% था, लेकिन इन 60 सालों में 4% पर हम आए. लेकिन 2014 से अब 2020 में हम 6% पर आ गए. That means the latest government is more interested in grooming or the educational growth in the country. They are more interested in. So sudden 2% का jump और 60 साल में 3-3.5%. So it's a good sign for our nation. So अब इसे हम चेंज भी साथ साथ करते जाएंगे क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से मैं नीचे आपसे मॉडिफाई करूंगी.
The increase, और जो developed nations हैं आपको पता है कितना लगाते हैं 20 to 30% varies. China spends close to 28 to 30% on their education, which is a big number. मतलब उनकी grooming देखिए जरा, जापान, रशिया, ये सब education पर बहुत पैसा लगाते हैं. The increase in education expenditure has not been uniform. यूनिफॉर्म नहीं रहा, पहले कभी ज्यादा जंप हो गया और कभी बहुत माइनर सा रहा, कभी रहा ही नहीं. And there has been irregular rise and fall, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया. To this, if we include the private expenditure incurred by individuals and philanthropic मतलब जो charitable institutions होते हैं, okay? उन्होंने वो भी तो लगाते हैं ना, NGOs है बड़े सारे जो फ्री एजुकेशन देते हैं लोगों को. लोग भी तो खुद लगाते हैं, हम लोग भी तो लगाते हैं ना पेमेंट, अपने बच्चों में पैसा लगाते हैं. हमारे बच्चों के लिए तो गवर्नमेंट नहीं लगा रही ना, हम लगा रहे हैं. So that is also there. The total expenditure should be much higher. अगर हम सारा टोटलिटी कर दें तो it will be a little more, but यहाँ हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर. I'm sure it is clear, easy to remember. Now let's move to the second part, total government का expenditure. Now you need to come to the first point. The percentage of education expenditure of total government expenditure indicates the importance of education in the scheme of things before the government. So what does this mean? It indicates the importance कि गवर्नमेंट अपने जैसे मेरे घर के खर्चों में सपोजिंगली मेरा जो है घर का खर्चा 80,000 रुपीज है पर मंथ. इसमें से जो भी अनप्रोडक्टिव खर्चे या जो भी खर्चों को छोड़कर मेरा परसेंटेज एजुकेशन पर कितना लगता है. So this we have to find out. So you can find out the percentage. If I am spending 20,000 rupees out of 80,000 total expenditure, so you can get to know 20,000 divided by 80 into 100. So आपको पता चल जाएगा हम कितना लगाते हैं. So that means 25% close to 25% मैं अपने घर का खर्चा एजुकेशन पर लगाती हूँ. ऐसी गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है. इससे दिखता है कि मेरी प्रायोरिटी एजुकेशन है या नहीं. Supposingly 80 में से 40,000 rupees I spend on the education of my children and my own education. So it means मेरे लिए एजुकेशन की वैल्यू कम है या ज़्यादा? Of course ज़्यादा. मेरे घर के खर्चे में 50% खर्चा मेरी घर की एजुकेशन पर है, घर के लोगों पर. It means मेरा towards education जो मेरा point of view है वो कैसा है? I prefer to be educated and I really want my children also to be educated. चलेगा भैया? During 1952 to 14 वही same duration लिया. एजुकेशन एक्सपेंडिचर कैसे कितना बढ़ा? 7.92 से 15 पॉइंट पर आ गया, ऑलमोस्ट डबल. अब क्वेश्चन आता है ये एमसीक्यू में पूछे जाएगा डेटा? नहीं. हाँ, जो अब 6% हो गया आ सकता है क्योंकि नाउ इट इज चेंज्ड रिसेंटली और आगे आने वाले पेपर में ये पूछा जा सकता है. दिस पॉलिसी इज अनाउंस्ड वेल बिफोर टाइम. अभी तो क्वेश्चन पेपर्स बने ही नहीं है. ओके, सो ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं पूछा जा सकता 7.92 से कितने परसेंट हो गया. फिर तुम्हें याद करना है, हाँ, क्योंकि जब अगर ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्म में आता है, मे बी फॉर 3 मार्क्स और मे बी फॉर 4 मार्क्स, तब आपको अपने आंसर को अच्छा और हैवी बनाने के लिए डेटा यूज करना होगा. तब आप याद करके रखें. You can even write like this, 7% है approximately and it got doubled, more than doubled after this time, मतलब between this time. Okay, okay? चलिए. अब नीचे मैंने एक नोट दिया है, इसमें क्या क्या याद करना है. सारे जो अंडरलाइन पॉइंट्स हैं you have to remember, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में हैं. जो चीजें एनसीईआरटी में हैं और इसमें से अगर कुछ आता है तो एमसीक्यू. नंबर 1, 2014-15 का अगर हम बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट जो है, किस स्टेट की गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट वाइज भी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस डिफर करती है. तभी तो लिटरेसी भी डिफर करती है. हिमाचल इज 100% लिटरेट, केरला इज 100% लिटरेट. ओके, सबसे कम लिटरेसी कहाँ है? बिहार में. इट मींस प्रेफरेंस वहां के लोगों की और गवर्नमेंट की पढ़ने की है या नहीं, ये भी पता चल जाता है. तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन सी गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा स्पेंड करती है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पर पर्सनल एक्सपेंडिचर. सो हिमाचल ज्यादा करता है 34,651. लीस्ट कौन करता है? बिहार 4,088. याद रह जाएगा. सो यू हैव टू रिमेंबर. ओके, लर्न. चलिए दूसरा, 50 years ago एजुकेशन कमीशन बना था. आपको याद रखना है एजुकेशन कमीशन 64 से 66 में उन्होंने क्या रिकमेंड किया
दे रिकमेंडेड कि कम से कम 6% तो जीडीपी का हमें लगाना ही चाहिए। देखिए हम हमेशा हाई टारगेट रखते हैं ना राजे, जैसे अगर पहले हमारा 0.6 था और 4 तक आया तो नेक्स्ट टारगेट ऑफ कोर्स वी विल कीप इट लिटिल हाई। सो उन्होंने ये कहा एजुकेशन कमीशन ने कि हम अभी बहुत कम स्पेंड कर रहे हैं, और जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तब तो हम पॉइंट्स में थे, 1 से भी कम थे। सो दैट टाइम दे रिकमेंडेड कि हमें 6% टारगेट पर जाना है, जबकि हम अभी उससे बहुत पीछे हैं। सो टारगेट याद रहेगा किसने दिया था, एजुकेशन कमीशन ने। फिर आ सकता है क्या हमने अभी कर दिया, हाँ जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है अब हम 6% लगाएंगे, यानी जो रिकमेंडेशन 64-66 में किया गया था, नाउ वी आर गोइंग टू फाइनली इंप्लीमेंट दैट। चलिए तपस मजूमदार कमेटी याद रखेंगे, नाम भी याद रखेंगे, और इन्होंने क्या कहा था, he said that government of India in 1998 estimated an expenditure of around 1.37 lakh crores over 10 years। अगर हम इतना स्पेंड कर दें, इससे क्या होगा, it will bring all Indian children in age group कौन सी 6 to 14, ये जो नीचे वाला एज ग्रुप है, हम चाहते हैं कि ये भी लिटरेट हो, एटलीस्ट लिटरेट हो, ग्रेजुएटेड नहीं तो लिटरेट समझते हैं, इन्हें अक्षरों का ज्ञान हो, एटलीस्ट साइन करने आते हो, मैथमेटिकल स्किल्स हो। सो हम इन्हें 10 इस टाइम पर हम 1.37 लाख करोड़ इन ड्यूरेशन 10 साल में स्पेंड किया। सो दिस वाज अपॉइंटेड बाय, दे एस्टिमेटेड दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, क्योंकि दे ऑल आर द एस्टिमेशंस। Then compared to desired level, अब ये पीछे वाली लाइन है, पहले लेवल 4 था, they wanted to achieve to 6, ठीक है जी। सो ये आपको बताइए है। अब राइट टू एजुकेशन के बारे में क्या क्या याद रखना है, इन 2009 में आया था 1, गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर राइट दे दिया, ये नहीं कहा आपको करनी चाहिए, बोला ये राइट है तुम्हारा, आपको ये फ्री में दी जाएगी, किस एज ग्रुप को, 6 to 14 एज ग्रुप को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2% एजुकेशन सेस भी लगाती है। नाउ व्हाट इज एजुकेशन सेस, इज अ काइंड ऑफ टैक्स व्हिच इज चार्ज्ड फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, ओके, एंड व्हाई डू दे टेक इट ऑन समथिंग, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों चार्ज करते हैं, क्योंकि वो पैसा जो उस पर्टिकुलर हेड के अंडर कलेक्ट होता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी टैक्स चार्ज होता है, तो वो स्वच्छ भारत वाला कहाँ लगेगा, स्वच्छता के लिए। ये एजुकेशन सेस के नाम पर लिया जा रहा है, तो किस पर लगेगा, एजुकेशन पर, यानी दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम रिच पीपल एंड स्पेंडिंग ऑन पुअर एजुकेशन। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। सो दिस यू हैव टू लर्न, मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझा दिया है। वन वे टू चेक इज चेक थ्रू योर इनकम, सेकंड वे ऑफ चेकिंग इज चेक थ्रू योर एक्सपेंडिचर। तो हम गवर्नमेंट का साथ में नाम लिखेंगे, कुछ डेटा भी याद रखेंगे, बेसिक चीजें, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन सेस कितना है हमने पढ़ा 2% एजुकेशन सेस लगता है, ये फिगर्स आपको याद रखनी है। करंट एजुकेशन पॉलिसी ने कितना अनाउंस कर दिया, 6, कहां तक थे, 4% पे थे। तपस मजूमदार कमेटी ने क्या कहा, एजुकेशन कमेटी ने क्या, ये सब आपको बातें याद करनी होगी। ऑलराइट, बाय बाय।